with the help of astrology, with the help of hypnotherapy, you can do some remedies. तो वो automatically problems आएंगे तो आपको पाथ मिलेगा. What is this big difference between astrology, numerology, tarot? I always say be authentic, be in integrity. It is a science. Your subconscious mind is the most powerful thing in the universe. And astrology is a very serious business. Investment on yourself. Yeah. You are wanting some decision, then you please go to a trained astrologer. Yeah. Welcome to the Wedding Podcast. Let me ask you something. Is love really just chemistry and compatibility? Or does astrology, numerology play a silent role in influencing relationships? In this episode, we're going to deep dive into the question and build a conversation around zodiac energies, couple dynamics, and what the year ahead looks like for love and partnerships. Joining us to decode this is Dr. Gitanjali Saxena. She's a tarot card reader, astrologer, numerologist, hypnotherapist, and a family constellation facilitator who has helped transforming 1 million plus lives. Welcome, Gitanjali ji. Thank you so much for calling me. You're most welcome, and we are, it's an honor to have you here today. आप इतने सारे modalities you work in, numerology, astrology, hypnotherapy, and there's so much. ये कैसे, how did this journey start, and what did you really think of when you decided to step into this space? So see, my mother was an astrologer. Okay. Okay, so she was into astrology, tarot, Reiki, past life, way back in 1992-93. Okay. So देखा जाए तो धरोहर है, देखा जाए तो उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दिया. But at that point of time, as you are growing up, आपको ऐसा लगता नहीं कि ये चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट है या काम करती हैं, बिकॉज यूर इन योर ओन वर्किंग, स्टडिंग एंड ऑल दैट. देन व्हेन थिंग्स स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग इन माय लाइफ, Okay. when I started having financial issues, means in the sense my husband's business started having financial issues, so I was like, why? So everything is going good, then suddenly why this problem? Yeah. And then I went to my mother, I asked her, and then she told me कि ये आपकी साढ़े सती है, ये आपके हस्बैंड की साढ़े सती है, आपकी महादशा बदल रही है. And that intrigued me that yes, planets do play a very important role in everybody's life. Yeah. And आपका प्रारब्ध होता है जो आपके planets अलग अलग समय पे बदलते हैं, क्योंकि हर प्लैनेट की महादशा आती है. तो जब आपके अच्छे प्लैनेट की महादशा है तो आपका अच्छा समय आएगा. जब आपका प्लैनेट जो है उसका प्लेसमेंट बराबर नहीं है, या वो मैत्री के साथ नहीं है, या वो शत्रुता में है, तो आपका प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे. एंड सी, बिकॉज यू आर ऑन अ जर्नी एंड सिंस आई एम इनटू पास्ट लाइफ अ बिग डील, it will come. It is meant to come. Now, with the help of astrology, with the help of hypnotherapy, you can do some remedies to release it. Then I started, first of all, मैंने खुद ने अपने solutions अपने ऊपर किए. जी. ठीक है. तो अब जैसे मैंने सबसे पहले, अच्छा अभी एस्ट्रोलॉजी है, इसमें ये चीज़ें हैं, चलो अभी हम शनि के क्या निवारण करें. फिर ये पता पड़ा शनि इसलिए ख़राब है क्योंकि पास्ट लाइफ है, तो फिर हमने अपने पास्ट लाइफ्स किए. उसमें हमें पता चला ओके, सो वी हैव डन दिस कर्मा बिकॉज ऑफ विच वी आर सफरिंग, तो वो करा. सो आई रियलाइज दैट जस्ट बाय डूइंग वन थिंग you cannot. It's a combination. It's a combination, and it's a very comprehensive and very big science. Yeah. So I started studying it then. Wow. So I was a teacher by profession, but then I got into this, and my mother said that you are very good at it. So I said अच्छा. She said yes, when you do it, it comes. अच्छा, वो भी आपका प्रारब्ध है. हाँ. That's your path. That's your path. तो वो automatically problems आएंगे तो आपको path मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ तक पहुँचना है, आपकी जर्नी यहाँ है. सो आई जस्ट डिड इट एंड इट वॉज ग्रेट. मतलब इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड. तो और नंबर 3 हूँ मैं, तो ऑटोमेटिकली गुरु का नंबर है, तो एजुकेशन, एनी काइंड ऑफ एजुकेशन. सो फ्रॉम दैट आई जस्ट वेंट इन टू दिस पार्ट. इट वॉज वेरी सीमलेस, एंड टुडे आई लाइक गाइडिंग पीपल, हेल्पिंग पीपल. So it has been a great journey. So challenge से एक रास्ता मिला, मैं ये बोलूँगी. And how many years you've been practicing now? Myself, I've been practicing from 2003 and 4. So it's almost 22 years, 21 years, yeah. So tell me, now that you said this, that ये सब एक kind of energy होता है, stars होते हैं.
What is this big difference between astrology, numerology, tarot? Astrology, everybody says, is a established science. 100%. But tarot, numerology, hypnotherapy, are they scientific? Are they energy driven? थोड़ा इनके बारे में if you could elaborate would be great. देखिए, एस्ट्रोलॉजी मुझे बहुत विश्वास है, लेकिन साथ ही साथ टैरो पे भी बहुत इसलिए विश्वास है क्योंकि टैरो इज़ व्हाट, नथिंग बट जैसे हम कहते हैं ना, अभी होरारी चार्ट आपने लगाया, अभी का होरा क्या चल रहा है, जैसे आज का एक नक्षत्र होगा, आज का एक चंद्र आपके कहीं प्लेस्ड होगा, सूर्य कहीं होगा, हर 2-2 घंटे में लग्न बदलती है। तो आपका डे टू डे का जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपको फटाफट आंसर्स चाहिए, जो 3 महीने, 6 महीना, 9 महीना चाहिए, दैट विल योर टैरो विल से। ओके कि दिस इज़ लाइक पीपल कम टू मी एंड बोलते हैं कि कल ही परसों ही कोई आया कि मेरे 10 साल का रिलेशनशिप है एंड अब वो लड़का मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। अब मैंने उसकी कुंडली देखी तो कुंडली में तो प्रॉब्लम था, बट एग्जैक्ट प्रॉब्लम, मैंने कहा भाई तेरे लाइफ में, तेरे बॉयफ्रेंड के लाइफ में कोई दूसरी लड़की आ चुकी है। Heartbreaking fact. Yeah, she started crying. But I always believe that to give the facts rather than sugarcoating, because that is what most of people are doing. नहीं आ जाएगा, ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो। मैं बोलती हूँ भाई नहीं आएगा, 2 महीना रो लो, but get that fact right so that you can move on in life. Wow, that reality to roll it out. So people become very afraid to approach me. But I'm sure people who've come to you and heard a reality or a fact have that faith that they must be coming back again. Yes. So when they first hear it, they feel ki it is not right. Then they go to 3 more, 4 people. Then when what I say becomes right, they come back to me. And they say, आपने बोला था, इसलिए मैं फिर से आई हूँ, जो आप बोलते हो सही होता है. So I have got clients from a very, very long time, because whatever we speak, I always say be authentic, be in integrity. It is a science, it is a knowledge. अगर कोई आ रहा है आपसे कुछ पूछने के लिए, अगर डॉक्टर ही गलत डायग्नोज करेगा तो सामने वाला किस तरह से आपको हेल्प करेगा. कितनी बार मैं जब हॉरोस्कोप देखती हूँ, मैं बोलती हूँ कि यू नीड काउंसलिंग, यू डोंट इवन नीड रेमेडीज, बिकॉज इट इज अ माइंड. वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, बिकॉज आपका जो है, जैसे कोई लोग होते हैं ना एंग्जाइटी में रहते हैं, अब उनकी कुंडली में दिख जाता है चंद्र खराब है, राहु खराब है, कोई महादशा खराब है. सो आई टेल देम, आई सेड यू नीड काउंसलिंग, यू नीड सर्टन थिंग्स टू लेट गो. एंड एट दैट टाइम फिर मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, देखिए हम सबका करते हैं, बट आई इवन गिव देम कि यू नीड समबडी टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर ओवर थिंकिंग इज नॉट द रियल थिंग. ऑल द टाइम focusing on what the husband is doing or what the wife is doing is also not right. Yeah. And I have got clients, or I had people who do, they don't want to even accept their failures. They will say, आज ये किसी ने negative energy कर दी, आज मेरे servant ने कर दी, आज मेरे इसने कर दी, वो जो मेरी बाजू वाली है वो चाहती नहीं मैं आगे बढ़ूँ. All this is in the mind. Yeah. Like your childhood has been नॉट ग्रेट, राइट? तो इसलिए मैंने पूरी स्टडी कर दी. फिर मैंने कोई एंगल नहीं छोड़ा आपने. देन आई डिड माई MA इन साइकोलॉजी ऑल्सो. वाओ. बिकॉज आई सेड कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, ऐसे थोड़ा चलेगा. सो आई डिड माई MA इन साइकोलॉजी. फिर मैंने PhD भी ख़त्म करी अपनी. और मैंने बहुत रिसेंटली की, 2012-13 में मैंने क्लियर करी, कि मैंने बोला चलो एक प्रॉपर उनको बेस दें. काम जो है वो साइकोलॉजी भी है, होलिस्टिक भी है, वी हैव काउंसलर्स ऑल्सो, वी हैव टैरो रीडर्स ऑल्सो, एंड जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं वो दे देती हूँ. सो टू समराइज, यू आर लाइक द MD, लाइक अ डॉक्टर. हाँ, लाइक अ डॉक्टर. के आप मेरे पास आइए, अब आपकी मैंने तकलीफ जानी है, अब आपके पास जाना है, यू हैव टू गो टू द हार्ट स्पेशलिस्ट, और यू हैव टू गो टू टू एनी अदर डॉक्टर. यू विल be able to give them that guidance and what are the next steps. I just hear the problem and I just tell ये है. I mean, you're able to diagnose where is it coming from. Yeah. Which is beautiful. Yeah. So I diagnose very nicely. That's nice. Very interesting. But you should be able to hear what I say. Suppose जैसे अभी मैंने किसी को बोला आपका टाइम खराब है, तो खराब है. तो आपको, जैसे मुझे पता है कि मेरा टाइम अभी थोड़ा सा दिक्कत वाला आना है, तो मैंने उसके लिए रेमेडीज़ करना शुरू कर दिया है. आई ऑल्सो डू माई रेमेडीज़. तो मैंने उसके लिए रेमेडीज़ करना शुरू किया. मुझे पता है मेरे 12वें घर की महादशा चलने वाली है, तो मुझे थोड़ा सा डोनेट करना है हॉस्पिटल्स में. आई एम प्लानिंग टू ओपन एन ऑफिस आउटसाइड इंडिया. तो ये सब करना ही पड़ेगा आपको. नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी. तो वी कैन गिव दैट फॉरवर्ड प्लानिंग भी हम कर देते हैं. सो कमिंग बैक, नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट टैरो इज मोर immediate, getting an understanding कि immediately क्या हो रहा है, like a near future kind of thing.
Astrology is something that keeps going on. It's your cycle, it's your stars, it keeps moving. What is numerology and what is hypnotherapy? देखिए न्यूमरोलॉजी तो बहुत मतलब ये साइंस मुझे याद है 93-96 में तो कोई न्यूमरोलॉजी पूछता ही नहीं था. करेक्ट, ये बहुत ही रीसेंट फिनोमिना है. एंड क्या है कि इट हैज कॉट अप सो मच बिकॉज नंबर्स यू कैन अंडरस्टैंड. जैसे अभी अगर मैंने सबके नंबर्स, ये सबको पता है नंबर्स हमारे हैं, उसमें से हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं. लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू यूज न्यूमरोलॉजी टू प्रिडिक्ट समथिंग वेरी ग्रेट. Like if you ask me today, Gitanjali, I need a job. So do I change it or do I keep it? That is not a numerology question. That is a question based on your, cards. But अगर मैंने numerology में देख लिया आपका 9 नंबर का साल है, When I say 9 नंबर का साल, इट्स अ 9 नंबर पर्सनल ईयर. ठीक है, आपका 9 नंबर का साल है. अब ये साल में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है. सो मैं टैरो और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से फिर मैं बोलूँगी, देखिए इवन दो टैरो बोल रहे हैं आपको ये रेमेडीज़ करनी है, ये साल आपको डिसीजन नहीं लेना है, बट आई विल स्टिल चेक कि अगर इसने सपोज जॉब करना है या शादी करनी है, कितनी समय में बोल देती हूँ शादी ये समय पे मत कीजिए, इसके टाइम बात कीजिए, इसका समय ये चेंज होने वाला है. तो भले आपका सपोज करंट जॉब में निकलने वाला है तो मैं बोलूँगी भाई ये जॉब जाने ही वाला है तो चेंज करो. अगर ये कंटिन्यूसली ये साल रहेगा तो फिर आप चेंज मत करो, क्योंकि आपका 9 नंबर का मंगल का साल है और मंगल के साल में हम कुछ नहीं करते हैं. एंड मंगल का साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है. जैसे जब आपका मंगल का साल आएगा पर्सनल ईयर, तो जैसे अभी ये सब लोग बोल रहे हैं 1 नंबर का साल है. 1 नंबर का साल है, बट आपके लिए वो 1 नंबर का साल, अगर आप 8 नंबर हैं तो आपके लिए एंटी ईयर हो गया. प्लस आपका मंथ ऑफ बर्थ क्या है, तो आपका पर्सनल ईयर अगर आप 8 फरवरी हैं तो भले 8 है पर आपका पर्सनल ईयर तो 1 आया ना, तो इतना तकलीफ दे नहीं होगा. वाह. तो ये सारा प्रेडिक्शन आप कर सकते. तो हम लोग नॉलेज ले लेते हैं. जैसे अभी हमने देखा, जैसे अभी मैं किसी का भी नंबर देखती हूँ, अच्छा ये 2 नंबर है, ठीक है, अब आपका नंबर 8 है, मैं बोल दूँगी एंटी नंबर्स हैं भाई, अवॉइड करो मैरिज करना, कंपैटिबिलिटी नहीं होगी. कंपैटिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि आप लोग के विचार ही नहीं मिलेंगे. ये पूरे टाइम इमोशंस में रहेंगे और वो व्यक्ति पूरे टाइम अपने हाउ टू गो अहेड इन लाइफ, डिप्लोमेसी. एंड 8 नंबर तो वैसे भी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इज़ नॉट वेरी ग्रेट फॉर द पर्सन इज़ ओनली वेरी डिफरेंट. तो ऐसे नंबर्स 8 नंबर के साथ होने चाहिए जो उनको समझ सके. विच इज़ द बेस्ट नंबर दैट गोज विथ लाइक अ नंबर 8? 3 कैन गो. 3 इज़ अ वेरी गुड नंबर विद नंबर 8, क्योंकि गुरु है ना, शनि हमेशा गुरु की सुनेगा ही सुनेगा. क्योंकि वो गुरु हैं तो गुरु की सब सुनते हैं. तो 3 नंबर विल बी गुड विद इट, 5 नंबर विल बी गुड विद 8. ओके. दीज 2 नंबर्स. एंड व्हिच आर द नंबर्स दैट डोंट गो विद? देखिए ऐसे तो 2 नंबर 2 and 8 आर एंटी, 1 and 8, 9 and 8, 4 and 8 भी हम नहीं बोलते. तो काफ़ी नंबर्स 8 के साथ नहीं जमते. तो जब आप फिर कंपैटिबिलिटी के लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, हम कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं आपका जमेगा, कोई बात नहीं, हम प्यार करते हैं. बट फिर बाद में इश्यूज़ आते ही आते हैं. जैसे चंद्रमा और राहु का आता है 2 और 4 नंबर वाले, पहले तो उन लोग बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे एक दूसरे से, बहुत प्यार, इतना पागलपन की तरफ प्यार. और उसके बाद 2-3-4 साल शादी के अंदर राहु बोलेगा मुझे तो थॉट प्रोसेस है, मुझे पैसा कमाना है, मेरा अलग ही ये है. और 2 नंबर बोलेगा मुझे अभी भी घुमाओ फिराओ. अब दोनों का क्लैश होने लगता है. सो देयर विल बी सेपरेशन इन देयर थॉट्स आफ्टर 5 years, 7 years, 8 years. ये टॉपिक ऐसा है, मैं अभी सोच रही थी जब आप बात कर रहे हैं कि आई थिंक ये तो हम पूरा दिन पॉडकास्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें इतना कुछ है डिस्कवर करने के लिए, इतना कुछ बात करने के लिए, कि आई थिंक इट्स लाइक you just kind of want to delve into it so much. But I'd like to understand one thing. अब हम नंबर की ज़रा बात कर रहे हैं, तो which is that one number which is the most amenable number? 5 नंबर. Very amenable. बुध है ना, बुध का किसी के साथ दुश्मनी नहीं है. देखिए बुध की हमने श्रेणी दी है बच्चे की, प्रिंस की, ठीक है. अब प्रिंस के साथ सबको अच्छा बनना है क्योंकि राजा का बेटा है, रानी का बेटा है. एंड बच्चे के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं करता है. बड़े से बड़े लोग बच्चे के सामने यू विल सी दैट इवन समटाइम द हार्डेस्ट ऑफ पीपल दे आर काइंड. तो
बुध के साथ सबकी जमती है। तो अगर जो 5 नंबर वाले हैं ना, वो उनको अच्छा पता भी होता है कि मुझे इसके साथ किस तरह से बात करनी है। तो अगर वो 5 नंबर होगा तो उसकी 1 से भी बनेगी, 2 से भी बनेगी, 3। तो द बेस्ट नंबर टू हैव इन न्यूमरोलॉजी इज फॉरगेटिंग। अच्छा, आपका 5 नंबर है तो आपके सबके साथ जमेगी, आप 8 हो, 9 हो, 4 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स एंड दे अंडरस्टैंड दिस अदर पर्सन साइकी। सिर्फ 5 नंबर वालों का एक ही है, दे आर वेरी वेरी फ्रीडम लविंग। मुझे जो करना है वो करने दो, मेरे पीछे मत पड़ो। बच्चा कैसा होता है, आपके बच्चे के पीछे उसको डिसिप्लिन कर सकते हो। तो आई थिंक फ्रीडम तो हर किसी को प्यारी है आजकल। नहीं, पर कोई कोई लोग अंकुश में रह सकते हैं। 8 नंबर वाले अंकुश में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे तो उनकी लाइफ अच्छी रहेगी। अच्छा, तो कोई कोई लोग अंकुश में रह सकते हैं। 3 नंबर वाले अंकुश में रह सकते हैं। 5 नंबर वाले को अंकुश में रखना पॉसिबल नहीं है। अंकुश इज डिसिप्लिन। अंकुश इज डिसिप्लिन। जैसे अभी बच्चे हैं 12 साल 13 साल के, तो आप कैसे चुप रहो तो जैसे आप हट जाओगे वो लोग मस्ती करेंगे ना। So that is why in the marriage, that's the only thing. If you the partners give them freedom, they will be very happy in the marriage. You know, that brings me to my next question and thought. Gen Zs को आजकल सब कह रहे हैं Gen Z, एंड बेचारों को इतना लेबल किया जाता है, वो ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। I feel it's just one of those things के बहुत ज़्यादा उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, you know. There are 2 kinds of Gen Zs I've come across. एक जिनके बहुत clarity of thought है और एक जो काफ़ी lost है. You know, there's no in between. वो balance थोड़ा missing लग रहा है मुझे. This is my point of view, and Gen Zs, please forgive me for this. I hope they don't get angry with me for this. But what do you think? They come to you for consultation. Do they really want to understand this aspect of life before they get into a marriage or into a relationship? देखिए, सबसे बड़ी बात जेंजी की है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना लेने में इच्छा नहीं है। That's what you think? That's what I think is experienced. उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना नहीं लेना। तो मैरिज इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप देखो कि जेंजी जो है ना, वो पीछे पीछे जाने चालू हो रहे हैं। हमें शादी नहीं करनी, हमें साथ में रहना है, हमें समझना है। दे आर टॉकिंग लाइक दिस। तो आप जब देखेंगे ना जेंजी आते हैं तो वो यही बोलते हैं कि अच्छा ये लड़का हमारे लिए अच्छा है। दे वॉन्ट दैट पर्सन एंड दे डोंट वॉन्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद दैट। वाओ। सो मुझे आप पसंद हो, पर मुझे आप दूर से पसंद हो। मुझे एकदम पास, हाँ, मुझे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है उस समय का। एंड दे आर वेरी, सम ऑफ द जेंसीज आर वेरी लॉस्ट एंड इट्स ऑलवेज विद द जेंसी जो मैं देख रही हूँ। और क्या हो गया है कि 1999 के बाद पूरी एक जनरेशन 2000 आ गया है। तो जब तक 1999 था, 1 था, 9 था ना, 9 वॉज अ नंबर विच वॉज वेरी वेरी थिंकिंग ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन नंबर बोलते हैं ना 9 नंबर को। तो ये पूरा 1900 से 199 तक तो हमेशा 9 नंबर था ही। हाँ। अब 9 नंबर था तो ये लोग संभले हुए थे। ये लोग काम करने के लिए तैयार थे। ये ह्यूमैनिटी के लिए सोच सकते थे, किसी और के लिए सोच सकते थे। ये 2 नंबर मेरा, मुझे क्या चाहिए, शुरुआत ही वहीं से होती है। अब मैं देखती हूँ ना 2022 के बच्चे तो कभी नहीं आते क्योंकि तो बहुत ही छोटे हैं। बट अब हम देखेंगे ना, अगर 2007 के बच्चे हैं, 2012 के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे के भी आजकल गर्लफ्रेंड्स हो रही हैं। दे आर वेरी वेरी लाइक यू नो इमोशनल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सिचुएशनशिप्स उनकी काफ़ी अच्छी होती है कि मतलब आज हैं ठीक है, प्यार नहीं है भैया, अब हम कन्वीनियंस है। हम तो दे आर मोर टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स, दे डोंट थिंक अबाउट द अदर पर्सन। इट्स अ फैक्ट, इट्स नॉट लाइक यू नो अ थॉट प्रोसेस, बट इट्स नॉट एज इफ दे डोंट लव, दे डोंट वांट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद दैट। तो मैं नॉर्मली जेंजी आते हैं ना तो मैं उनको स्मॉल हीलिंग प्रोसेसेस में डाल देती हूँ। जैसे चक्रा हीलिंग कर लो, एफर्मेशन कर लो। 100+ some number of souls which are your soul connect. Okay. And you always connect with them in your life till you get moksha. You are having some roles to play with them. Is this true? 100%. Yeah? 100%. Because we call them as soul families. Soul families. And there are one cluster which is like very, very
you know, just like this, and then it goes like this, like this, like this. So आपके जो husband होंगे, mother होंगी, siblings होंगे, they are a very strong 50-100 लोगों का cluster है. हाँ. Then people you meet or after you interact, cross you paths cross with. paths. Somebody helps you for 2 years, goes away, and वो सारे आपके extended family, you know, it comes in that Extended circle of soul. of souls है. तो आपका है ना contract होता है. तो before coming down, I have made a contract. I want to be born here. I want to be born in Mumbai. I want to be born to this mother. I want to be born to this father. Wow. So these contracts are made. Sometimes you don't want to be with the person, like mostly marriages में, if your incompatibility हो गई, they don't want to, so then people come to us कि मेरे आकाशिक records देख लीजिए, ज़िंदगी भर इसी के साथ रहना है, is there somebody else? So there are more soulmates to choose now. Wow. मैं हमेशा बोलती हूँ एक इंसान के पास अपनी हॉरोस्कोप का सपोर्ट होता है, अपने टैलेंट और फ्री विल का सपोर्ट होता है, और तीसरा होता है सपोर्ट वास्तु का. आपने अभी अभी एक चीज कही, फ्री विल. हाँ. मेरे को इसके बारे में थोड़ा बताइए. हाउ डज फ्री विल वर्क? So suppose if I'm today having a problem, it's my free will whether I need to go to a astrologer. It's my free will to start making changes in my soul contracts. It's my free will to see my past life, to understand why I did it. And you know, the soul is here for learning. The moment I come to know that this is what I have done in my past life, and I release that past life, and I take proper forgiveness, and I do the proper steps, you will start seeing that the same person changes in front of you. I have got so many cases where people have shifted after doing their healing sessions, after following certain rituals. I normally give rituals as well as healing because I believe a lot in the power of the mind. So even power of the mind. Yeah, your subconscious mind is the most powerful thing in the universe. Correct. We are focusing a lot more on the relationship of couples. Okay. And how people should come together, share love and partnerships. तो थोड़ा इस पे टिप दीजिए कि when people are coming together, what happens in a case like that when people are in love? Should they continue, not continue, do what? Because people who are in love will continue any which ways. So they continue. They go against our advice. And then there is a separation, a thought process, दिल बदल गया, thought process change हो गया. Because जब आप अपने कुंडली मैच नहीं करते हो, तो आपके जो बोलते हैं ना, हमने जो 36 गुण हम मैच करते हैं, दे आर बिकॉज आपका टेम्परामेंट मैच हो किसी के साथ, इमोशनल आपका मैच हो, आपके प्रोजेनी की हेल्थ कैसी होगी, वो सारी चीज़ों को हम देख के करते हैं. आज ये कोई नहीं कर रहा है. तो बट पीपल शुड कंसल्ट योर सिंग बिफोर दे टेक डिसीजंस लाइक मैरिज एंड जैसे मैं है ना हमेशा मैरिज में हमेशा यही बोलती हूँ कि मंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी सी पीपल, ऐसा नहीं है कि लोग मांगलिक नहीं होंगे. आज के दिन के लोग जो बॉर्न होंगे, अराउंड अगर 100 बच्चे हो रहे हैं तो 50 पीपल बच्चे मांगलिक होंगे, क्योंकि मंगल अपनी पोजीशन बदलेगा ही दिन में. तो ऐसा नहीं है कि मांगलिक नहीं है. जितने मांगलिक हैं उतने लड़के भी मांगलिक होंगे, लड़कियां भी मांगलिक होंगी. तो इट्स अ इक्वल रेशियो. बट ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज मंगल से आपका टेम्परामेंट पता चलता है. आपकी है ना अंदर की क्षमता पता चलती है. तो व्हेन अ मांगलिक गेट्स मैरिड टू अ नॉन मांगलिक, व्हाट यूजुअली हैपेंस इज दैट सामने वाला पर्सन की कभी कभी हेल्थ खराब हो जाती है जो नॉन मांगलिक है. Right? Then the separation happens because their way of approaching, and if that sex is a very important part of marriage. Their way or thought process of approaching sex after some time changes, and then the problem starts. So मंगल is आपका physical stamina. मंगल, एक का मंगल भारी है, दूसरे का मंगल उतना भारी नहीं है. अब एक जन का है भैया मंगल, लग्न में मंगल हो गया, और दूसरे का तो मंगल कर्क का मंगल है, डेबिलेटेड है, नीच का हो गया, उसमें तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है. मंगल बैठ गया है चंद्रमा की राशि में, जो इतना अच्छा नहीं माना जाता है. तो मंगल में जो जितना पावर था वो सारा इमोशंस में बह गया. बहुत मतलब यू नो सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ. मतलब थोड़ा टेक्निकल कम होते हैं. हाँ, तो मंगल के एनर्जीज के, चंद्रमा क्या है? इमोशंस है. मंगल क्या है? अग्रेशन है. अभी एक वॉरियर है. वॉरियर अगर वॉर के टाइम पे बोलेगा नहीं मुझे नहीं करना है, जैसे अर्जुन ने कहा था मुझे फाइट नहीं करनी है, राइट? क्योंकि मेरे सामने मेरे, तो वो इमोशंस में आएगा, तो उसके पास फाइटिंग की एबिलिटी नहीं होगी. अब ये इंसान के पास मंगल भारी, ये बार बार इसके ऊपर वार करेगा, वो बेचारा सोचेगा ये वो. Then after a period of time, what actually happens is you internalize a lot of your emotions.
उसकी हेल्थ खराब होगी, स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, परेशानी होगी, वो बच्चों में जाएगा. वाई चिल्ड्रन पिकअप सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द पेरेंट्स. फिर वो बच्चे बीमार होना शुरू हो जाएंगे. या you give birth to children who are not very healthy because you are only not in your proper mind frame. अब आप ये बोल सकते हो आपका ही प्रारब्ध था, बट प्रारब्ध इतना भी होता तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे जब उसने मना किया था. दिस इज़ वेयर द फ्री विल केम. अगर डाउट हो जाता है ना, दैट मीन्स वो प्रारब्ध में थोड़ा सा अनबन है. यू कैन शिफ्ट. Yeah, but it's also to do a lot with authenticity. आज कोई एक एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं, कोई हाफ बेक नॉलेज वाले जैसे हम अभी बात कर रहे थे, इट्स लाइक यू आर लिटरली टेकिंग वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ ऑन somebody telling you something. The knowledge vetting and whether that person is 100% sure about what they are saying, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है. हाँ, तो इसलिए आपको ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए जो आप पहले जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले ना मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी. How should one choose an astrologer? हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूँगी कि एक एस्ट्रोलॉजर जो बहुत एक्सपेंसिव हो वो अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है. करेक्ट है ना. कोई जैसे अब मैंने सुना है किसी का 50,000 है, 70,000 है, ऐसे आप क्या बता दोगे. तो आपके जो थोड़े से रेट्स हैं या आपके जो चार्जेस हैं थोड़े से कम होने चाहिए. मतलब उससे आपकी ऑथेंटिसिटी पता चलती है कि यू आर नॉट फोकस्ड ओनली ऑन मनी, यू आर फोकस्ड ऑल्सो ऑन द वेलबींग ऑफ योर क्लाइंट्स. ये मेरे को मनी का एक बहुत ही रहता है. दूसरा मैं बोलती हूँ कि आप वो देखिए एस्ट्रोलॉजर क्या अभी 2 साल पहले एस्ट्रोलॉजर बना है कि उसका डिग्रीज भी देखिए, उसका आप हिस्ट्री भी देखिए, इंटेग्रिटी भी देखिए. दिस इज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल स्पेस दैट यू आर इन. यस यस. एंड आप जो इतने सारी एनर्जीज के साथ डील करती हैं, लाइक डे इन डे आउट, हीलिंग, पास्ट लाइफ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, यू कम अक्रॉस सो मेनी एनर्जीज. हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर ओन एनर्जी? So, what I do is I always, mostly I wear these crystals, and more than that I wear these Rudraksh. Okay. So these Rudraksh is specifically made for certain things. Okay. Okay? Because हम किसी के घर पे जाते हैं वास्तु करने, हम किसी की एनर्जीज लेते हैं, तो हमें ये रुद्राक्ष बहुत मुझे प्रोटेक्ट करता है. एंड आई रेगुलरली क्लेंस माई रुद्राक्ष. हाउ शुड वन क्लेंस देयर? सो इसको 15 दिन के अंदर आपको तेल जो होता है ना, सरसों का तेल ले लीजिए. मैं मोस्टली सरसों के तेल में डिप करके उसको पूरा 1 दिन के लिए रखती हूँ मंदिर में, और उसके बाद वो रुद्राक्ष लेके उसको धो के सनलाइट में रखती हूँ, उसके बाद पहनती हूँ. तो यू हैव टू क्लेंस बिकॉज एनर्जीज इट विल कैच. मैं हॉस्पिटल में रुद्राक्ष के बिना नहीं जाऊँगी. द मोमेंट आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल मैं रुद्राक्ष पहन लूँगी. एक बार मैंने सपोज नहीं पहना, ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल यू कैन नॉट वेयर इट, सो नहीं पहना, तो मैं अवॉइड करूँगी हॉस्पिटल्स जाना. बिकॉज हॉस्पिटल्स एक ऐसी जगह है, सिमेट्रीज ऐसी जगह है जो आप एनर्जीज कैच कर लोगे, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग देयर इन अ हैप्पी स्पेस. सो व्हेन योर एनर्जी फ्रीक्वेंसी लेवल्स आर लो, यू विल जस्ट पिक अप एनर्जीज रैंडमली. बिकॉज लोगों को लगता है स्पिरिट वर्ल्ड बहुत दूर है. नहीं है, बहुत पास है. Spirit world is around only, 4th plane. It's very much around. And what should one do is few regular practices? हाँ, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस अगर आपको चाहिए तो एक टूरमलिन ब्रेसलेट पहन लीजिए. Which one? टूरमलिन. या इट्स अ वेरी रीजनेबल, 500-1000 में आ जाता है. बहुत ही अच्छा आप लोगे तो 2-2,500 का आएगा. ठीक है. दूसरा आप है ना, अगर आपको अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट, जैसे ईवल आई का ब्रेसलेट आपने पहन लिया, वो भी आपकी एनर्जीज प्रोटेक्ट कर लेता है. तीसरा आपको है ना सॉल्ट वाटर बाथ आप ले सकते हैं. वेरी सिंपल. जैसे मैं किसी के घर गई थी तो मैंने कहा कि आपके फिलहाल तो वास्तु करने से पहले आप है ना अपने एटलीस्ट बाथरूम्स में सॉल्ट को रखिए, जाड़ा नमक रखिए, एंड उसको 15-15 दिन में फ्लश कर दीजिए और नया नमक लिए. ऑटोमेटिकली जो नेगेटिविटी है वो चली जाएगी. तो यही सॉल्ट आप अपने जैसे आपने शावर भी कर लिया तो भी आप एक मुट्ठी भर सॉल्ट बकेट में डाल के यू कैन टेक अ बाथ विद इट. तो उससे भी अच्छा. दैट हैज बीन टोल्ड अ लॉट. इनफैक्ट आपको क्राउन से लेना है. हाँ, मैं क्राउन चक्रा से लेना है. बीच में अभी जॉर्डन गई थी कुछ काम से, एंड वहाँ पर जो एवरीबडी डज सॉल्ट बाथ. आई मीन it's an old tradition in so many cultures. Yes. तो जो हम सॉल्ट भी देते हैं ना, जैसे सपोज पीपल कम एंड टेक सॉल्ट फ्रॉम मी, तो मैं वो सॉल्ट लेंगी, उस पर रेकी सिम्बल्स बनाऊंगी, फिर मैं बोलूँगी अभी ये सॉल्ट, तो एनर्जाइज सॉल्ट वो करते हैं. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू प्रोटेक्ट. तो जस्ट एक सॉल्ट वहाँ से लेना और एक सॉल्ट हम जब एनर्जाइज करके लेते हैं, नहीं तो मैं बोलती हूँ सीख लो रेकी, खुद ही कर लो.
but it makes a lot of difference. Reiki energy also, my mother was a very powerful Reiki channeler. If she would go to some person, she would start taking the energies of that person and she would start feeling those emotions. Really? Yes. So अब अगर मैं past life पे जाऊँ, that's a shamanic past life. तो बहुत कुछ है, आपने कहा ना. It's a lot to discuss. ये 36 गुण जो गीतांजलि जी बोलते हैं, इस पे थोड़ा elaborate करिए ना कि ये exactly क्या होते हैं. मतलब it's very important for a younger generation to understand the essence and meaning of 36 गुण. देखिए 36 गुण हमारे जो प्राचीन सभ्यता है या प्राचीन हम देखते थे, तो सबसे पहले हम लोग ये गुण मैचिंग ही करते थे, जिसमें अभी आपकी नाड़ी आती है, आपका भगूत आता है, आपका वर्ण आता है, आपकी योनि आती है. तो ये बहुत 36 ये करके हम करते थे कि अच्छा अब ये दोनों कंपैटिबल है कि नहीं है. जैसे अभी फॉर एग्जांपल नाड़ी की बात करें, हाँ. तो आप देखेंगे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स रिजेक्ट कर देते कुंडली अगर नाड़ी सेम हो तो. नाड़ी इज योर लाइक नाड़ी इज डिपेंड लीनिएज. लीनिएज भी होता है, लीनिएज से ज़्यादा है ना आपके हेल्थ होता है. जैसे एक बहुत छोटी बात है, सपोज मेरी अंत्य नाड़ी है ना, इट डिपेंड्स अपॉन आपका जो आयुर्वेदा तत्व क्या है, अर्थ, फायर और एयर. तो आपका तत्व क्या है. अब क्या होता है, अगर नाड़ी सेम हुई, सपोज मेरा भी नाड़ी एयर हुई और सामने वाले की भी नाड़ी एयर हुई, तो जो बच्चे प्रोजेनी होते हैं वो उनको हेल्थ इश्यूज होते हैं. इसलिए पहले नाड़ी देखते थे. सो दिस इज वेरी साइंटिफिक. दिस इज़ वेरी साइंटिफिक. तो नाड़ी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बच्चों में जो है, अगर हो सकता है एक में नहीं आए, आगे जाके दूसरे बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आए. अगर आप देखेंगे बहुत समय से, अभी पहले तो ऐसे नहीं होता, कितने सारे बच्चे ऑटिस्टिक हैं, दे कम विद सो मेनी इश्यूज़. पहले बच्चे में नहीं आती है, सेकंड में आ जाती है. जिससे ये ज़रूरी नहीं ना कि हर बच्चों में ही आए, लेकिन ये कहीं ना कहीं नाड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वैसे ही योनि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेक्शुअल लाइफ. अगर आपकी दोनों की सेक्शुअल कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो शादी में प्रॉब्लम होगी. तो इवन तो आई थिंक यंगस्टर्स आर टेकिंग केयर ऑफ इट बिकॉज दे नो दे आर वेरी पर्टिकुलर कि ये एंगल हैज टू बी वेल. Yeah, I think so, and which is a very practical thing they do at times, I think. No, what actually happens is कि the initial attraction 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल का अलग होता है. Oh, you're talking like a life. I'm talking about a lifetime. Lifetime अगर मेरी, because you are not meeting that person every day. Correct. And even if you're meeting every day, it's not as if you are, you are in that bubble, a haze. So you are actually not seeing a lot of things about that person which you may see in a arranged marriage setup. So what actually happens if it doesn't meet after 3, 4, 5 years, आपको उनकी sexual life में incompatibility दिखेगी. That you will see कि one partner will come and say कि मेरी wife को interest नहीं है. पता नहीं, पर पहले तो वो ऐसी नहीं थी. तो it's not about age, it's about the yoni also. If it is not matching, जैसे जब मैं कोई भी हॉरोस्कोप देखती हूँ तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 18 गुण तो मिनिमम मिलने चाहिए. जब मैं 12-13 देखती हूँ ना, मैं बोलती हूँ मत करो शादी. So you're saying minimum is 18. 18 मिलने ही चाहिए. जो जिनका 19, 19.5 मिला ना, तो आप देखोगे किटपिट लगी ही रहती है. और आप देखोगे 27-28 गुण जब मिलते हैं एक कपल में, उनके अंदर है ना, अगर वो बोलेगा यस तो वो भी बोलेगी यस, ये करना है तो ये करना है. रिफ्लेक्ट होते हैं, बहुत कंपैटिबिलिटी रहती है. सो माय सन हैड अ लव मैरिज. ओके, आई नेवर सेड नो फॉर एनीथिंग कि भाई लड़की का ये है या वो है, नहीं. बट सबसे पहले मैंने हॉरोस्कोप देखी. मैंने सबसे पहले 2 ही चीज़ें देखी कि कितने गुण मिल रहे हैं, क्योंकि गुण मैं कुछ कर तो सकती नहीं थी, कितने गुण मिल रहे हैं. बट जो मैं बहुत श्योर थी, मैंने कहा लड़की अगर मांगलिक हुई तो मैं ना बोल दूँगी. मैंने कहा मेरे बेटे का मंगल वैसे भी कमज़ोर है, तो मुझे मांगलिक लड़की नहीं चलेगी, क्योंकि उसका मंगल इसके मंगल पे भारी होगा, बाद में इसको फिजिकल इश्यूज आएंगे ही आएंगे. तो उसका वो मांगलिक नहीं थी. गुण भी 27-28 बोलते ना, भगवान ने कोई जोड़ी भेज दी होती है, विच इज लवली. तो आई सेड नो प्रॉब्लम. एंड नाउ इफ यू सी, लुक एट देम ऑल्सो, दे आर वेरी कंपैटिबल विद ईच अदर. दे विल गो, और मतलब अगर किसी को कुछ बोला तो सामने वाला बोलेगा नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. सो द काइंड ऑफ relationship about each other. Very nice. And it's just because it is my son? No, I saw everything and then I said yes to marriage. Otherwise, भले लव हो, भले कुछ भी हो, अगर आप अपने बेटे या बेटी के लिए तो अच्छा ही चाहोगे ना. That's true. तो मतलब आप कह रहे हैं कि सबको ये एक हॉरोस्कोप मैच करना चाहिए. और फिर भी आपको मिनिमम 18 गुण 18 होना चाहिए. फिर आपने 10-12 में शादी कर ली, तो फिर जो हम लोग बोलेंगे प्रॉब्लम्स आनी है, तो फिर आप लोग बर्दाश्त करिए, फिर पेशेंस रखिए, फिर आप रेमेडीज़ कीजिए. फिर आप ये मत बोलिए कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा ही रहेगा.
कभी ऐसा हुआ है कि 18 से ऊपर गुण मिले पर तो भी नहीं वर्कआउट हुआ? हाँ, कभी कभी हुआ है कि 18 से ज़्यादा गुण मिलते हैं तो वर्कआउट नहीं होता है, क्योंकि उनकी महादशाएं ठीक नहीं होती हैं। कभी कभी आपका घर का वास्तु ठीक नहीं होता है, और जैसे ही आपने वास्तु ठीक किया या कुछ चेंजेस किए तो बदलाव आ जाता है। बट अगर आप देखेंगे ना, 18 या 20 से जो गुण मिलते हैं ना ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं कितनी भी तकलीफ हो, वो कपल्स विल सेल नॉट कर लेते हैं। लीव ईच अदर। देखिए, प्रॉब्लम्स तो सब में आएंगी। आप बताइए, आप इतनी बड़ी कंपनी चलाती हैं, जो आपके स्टाफ हैं उनके साथ भी कभी कभी किटपिट पिटपिट होती है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। सो किटपिट वहीं में, बट इफ दे आर अलाइंड टू योर थॉट प्रोसेस, then they will be 100% with you. तो you can always iron out the differences. True. So that's very interesting. 18 गुण तो मिलने ही चाहिए. 18 is the number. 18 is the number. Minimum. That's interesting. शादी जब लोग करते हैं, auspicious dates और मुहूर्त बहुत ज़रूरी होता है. अभी हर साल ऐसा होता है कि auspicious dates पूरे साल के आ जाते हैं कि ये इतने मुहूर्त है पूरे साल के. हर डेट हर किसी को सूट होती है या कोई स्पेसिफिक डेट ही सूट होती है आपको? देखिए, जब है ना मेरे पास कोई मुहूर्त के लिए आते हैं, तो मैं ये पहले देखती हूँ कि अब हमने सपोज बोलते हैं हमें फरवरी में करनी है, तो जैसे हम देख लेते हैं फरवरी में कौन से डेट्स है, तो आजकल आराम से विकिपीडिया पे मिल जाता है. फिर हम वो डेट्स ले लेते हैं, देन वी चेक दोज डेट्स कि वो डेट्स में क्या क्या बेनिफिट है. तो वो डेट का लग्न चार्ट, जैसे सपोज अगर 26 फरवरी को हम ले, तो 26 फरवरी का लग्न चार्ट क्या है, और उसके साथ लड़के का लग्न चार्ट कितना मैच हो रहा है, लड़की का लग्न चार्ट कैसे मैच हो रहा है. अब अगर लड़के का सपोज राशि बैठ गई है, सपोज कुंभ राशि का लड़का है, अब उसका चंद्रमा कहीं बैठा है, लेकिन उस दिन कुंभ राशि अष्टम आ गई, यानी कि लड़के की लग्न या राशि अष्टम आ गई, छठे आ गई, 12वें आ गए, तो लड़के के लिए अच्छा नहीं है. तो बहुत सिंपल लग्न देखते हैं कि अगर उसका चंद्र सूर्य तो अच्छा हो, उसकी राशि तो अच्छी हो, वो सारी चीज़ें देख के फिर हम बोलेंगे अगर नहीं भाई 26 तो ये ठीक नहीं है, भले ये ऑस्पिशियस हो बट ये तुम्हारे लिए ऑस्पिशियस नहीं है. करेक्ट. तो वही इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक स्पेसिफिक मुहूर्त को एक और बार वेरीफाई करे कि वेदर इट्स गुड फॉर द बॉय और द गर्ल. और मैं तो कितनी बार है ना, इट इज़ बिकमिंग नाउ अ डेज मोर डिफिकल्ट. जैसे अब हम बोलेंगे कि 25 तारीख को शादी करो या 16 तारीख को शादी करो, बोले ये 7 नंबर केतु का नंबर है, तो आप कितनी सारी चीज़ें देखोगे. तो मैं बोलती हूँ हमेशा आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही देखो तो अच्छा रहेगा. न्यूमरोलॉजी वहाँ पे इतनी प्रज्वलित है जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी इतनी नहीं है. जब हमने ये इतना बड़ा साइंस हमारे पास है इंडिया में, भारत में, और हमने इतना ज़्यादा उसका बेनिफिट देखा है, तो फिर हम डेफिनेटली उस पर फोकस करेंगे रादर देन फोकस ऑन न्यूमरोलॉजी फॉर डेट्स. ओके, सो आई प्रिफर दैट, एंड पर्सनल हॉरोस्कोप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दो जिनकी शादी होनी है और उस दिन का लग्न चार्ट कैसा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, एज अ वेडिंग प्लानर मेरी डिफिकल्टी ये होती है कि ऑस्पिशियस डेट्स पे हमको डेस्टिनेशंस और होटल्स नहीं मिलते हैं. हम कभी कभी जोकिंगली बोलते हैं हमको अभी है ना पहले एस्ट्रोलॉजर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि भाई हमको बहुत सारी डेट्स दो. नहीं, डेट्स का नहीं होता है, आपको अपने जगह बदलनी होगी. अगर वो दिन नहीं मिली तो होटल बदल दो, क्योंकि शादी तो आपकी एक ही बार होगी. करेक्ट. होटल कोई भी हो सकता है आपके लिए. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स नहीं समझते, क्योंकि उनका मन जो डेस्टिनेशन या जगह पे बन जाता है, वो कहते हैं अभी इस पे वर्कआउट करो, उदयपुर पे ही जाना है, जोधपुर यहीं जाना है. तो आई ऑलवेज से कि नहीं, फर्स्ट डिसाइड करो, जो होटल मिलेगा वो उसके हिसाब से चलेंगे. डेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड देन वर्क ऑन द यस देन यू वर्क ऑन द लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी फॉर वन डे. अच्छा, ये जगह बहुत सुंदर है, क्या तुम वो जिंदगी भर उधर रहने वाले हो? नहीं, तुम अपने पार्टनर के साथ रहने वाले हो. तो जो दिन आपके और आपके पार्टनर की कुंडली के लिए सबसे अच्छा, बिकॉज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओकेजन ऑफ योर लाइफ, तो फिर आपको एंड योर फ्यूचर उसके ऊपर आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? आप जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, आपको डेट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है. मैं बोलूँगी डेट पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करो. बिलीव की बात होती है. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट बिलीव सो मच, they feel it's just a formality, the muhurat date. My parents want it, but I don't care. I want to have this kind of a dream wedding. हाँ, और आजकल उनका ये है कि ना मेरे फ्रेंड्स ने वहाँ किया है तो मुझे वहीं जाना है, एंड द थॉट प्रोसेस इज ओनली वेरी डिफरेंट. जैसे आपने कहा जेंजी, तो
तो पहले के लोग मान जाते थे, Yeah. अभी लोग मानते नहीं हैं. Yeah. बट फिर क्या होता है ना, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आती ही हैं. आप देखेंगे तो. ट्रू. यू नो, कलर्स पे लोग कहते हैं कि बहुत सारे कलर्स किसी के राशि के हिसाब से या स्टार्स के हिसाब से अच्छे नहीं होते हैं. एंड ऐसे कौन से नेचुरल कलर्स, ऑफ कोर्स अ ब्राइड ऑलवेज वेयर्स रेड, वाज ऑलवेज thought to be the most auspicious, but today brides wear pastel colors and they wear Green. different colors. ऐसे कुछ होता है specific colors that are very 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 auspicious for weddings and one should have them? देखिए ये है ना, अगेन फैशन आ गया है. पर्पल पहन रहे हैं, लाइट मूव पहन रहे हैं. तो आई ऑलवेज से कि देखिए, ट्राई टू कीप द फैमिली सेम. अगर रेड इज़ द मोस्ट ऑस्पिशियस, रेड लिया, ऑरेंज लिया, येलो लिया, ये हमारे वेदा में लिखे हैं कि ये हमारे सारे अच्छे कलर्स हैं जो एक आप अच्छे मुहूर्त पे या अच्छे दिन पे, जिस दिन आप पूजा करेंगे तो आप वही पहनेंगे. राइट. तो उस कलर की फैमिली, जैसे अगर आपको रेड नहीं चाहिए तो पीच ले लो, उसी फैमिली का ले लो. आई वुड से बट द बेस्ट कलर, जैसे अभी हम रश्मिका की बात करें तो उन्होंने क्या पहना, ऑरेंजिश रेड ही पहना ना. शी कुड हैव worn any color that she wanted. Neither money was a problem, neither her beauty was a problem. But she chose to wear it very traditional. Celebrity brides have chosen red as a color. Right. Clearly. अब आप वाइट और पेल पहनेंगे तो वाइट तो हमारे इट्स नॉट वेरी गुड. इवन अगर आप देखिए बंगाली में शादी होती है तो वो लोग भी तभी वाइट एंड रेड, एक रेड का जो आना ही चाहिए. There has to be an element of. There has to be an element of red. तो कीप रेड, कीप मरून्स फॉर योर वेडिंग एटलीस्ट. बाद में आप अपने रिसेप्शन पे कोई दूसरा कलर पहन लो. यू नो, शादी के घरों में लोग कहते हैं नजर लगती है, यू नो, उसको थोड़ा बी प्रोटेक्टिव ऑफ इट. ऐसा कुछ रिचुअल्स है जो लोगों को करना चाहिए जैसे ही शादी तय होती है शादी के घरों में? जैसे शादी तय होती है तो सबसे पहले जब आपके कार्ड्स वार्ड्स जो हम छापते हैं या करते हैं तो सबसे पहला न्योता आप अपने भगवान को देते हैं. क्यों देते हैं? वो तो बहुत इम्पोर्टेंट रिचुअल होता है. सबसे बड़ा वो ही आपका घर का प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं. राइट. द फर्स्ट न्योता इज टू द गॉड, यू प्लीज कम एंड अटेंड द वेडिंग एंड टेक केयर एंड प्रोटेक्ट. राइट. एक आप ये कर सकते हैं. दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत नज़र लग सकती है तो सरसों के दानों के साथ आप हर शनिवार को अपने घर का ना नज़र उतार के फिर वो किसी पॉट में वो दाने डाल सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग. ब्राइड्स एंड ब्राइड ग्रूम्स की नज़र उतारिए हर शनिवार को. मिर्ची लीजिए, नमक लीजिए, जो चीज़ें लेनी है लेके आप नज़र उतारिए. एंड ये होता है जब आप देखेंगे कि because either they look very pretty or they, whatever it is, but they normally tend to fall sick after the wedding or it is very much of exhaustion. But सबसे पहले नज़र उतारते भैया, उनको लोगों की नज़र लग गई, थू करके बोलते हैं कि हाँ, तो करना पड़ता है. एंड आई रिमेंबर, अगर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते ना तो एक पंडित जी से एक अच्छे मुहूर्त के समय एक रक्षा कवच जो होता है उन लोग मौली बांधते हैं, तो वो आप पहन लीजिए. तो अगर आप वो पहन लेंगे ना, अगर आप बोलेंगे हम तो पहन नहीं सकते, हम काम करते हैं, ये करते हैं, तो एटलीस्ट अपने पर्स में रख दीजिए, तो वो मौली आपको प्रोटेक्ट करेगी. दिस शुड बी फॉर द ब्राइड एंड द ग्रूम. ओके. फिर अगर आप देखेंगे तो हल्दी के बाद हम वैसे भी घर से नहीं निकलते नहीं है. तो आजकल जो डेस्टिनेशन वेडिंग है, ठीक है भैया, वही तुम्हारा घर है टेम्परेरी. तो पहले तो ये था कि आप हल्दी हो गई तो आपको मेकअप के लिए भी नहीं निकलना है जी. तो अगर मेकअप के लिए भी निकलना है तो भाई फिर कोई प्रोटेक्शन लेके चलो. क्यों? क्योंकि कितनी बार है ना, लोगों की नज़र लग के ना चीज़ें फिर ख़राब होने लगती हैं, तो वो सब करना पड़ता है. कोई यू नो, एंड आपको पता चल जाता है, जैसे ब्राइड है, भले हम हर चीज़ करें लेकिन कभी कभी है ना किसी के नक्षत्र ही थोड़े से भारी होते हैं, तो उनके नक्षत्र की शांति अगर आप कर लें पंडित जी से तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा प्रोटेक्शन के लिए. जैसे कहा कि एक डेस्टिनेशन वेडिंग में हम जाते हैं, वो हमारा घर हो जाता है. घर हो जाता है उतने दिन के लिए, 3 दिन के लिए. वहाँ कुछ ऐसा रिचुअल किसी को करना चाहिए कि यू नो, बिकॉज हम शादी वहाँ कर रहे हैं, इट्स एन ऑस्पिशियस ओकेशन, यू नो. हाँ, तो जैसे अभी पंडित तो हमेशा रहते ही हैं, तो वही वो ब्राइड और ब्राइडग्रूम के रूम में कर सकते हैं या छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं. जैसे अभी बहुत चीज़ें तो हम रख नहीं सकते, टूरमलिन रख लीजिए, छोटे छोटे क्रिस्टल्स रख दीजिए ताकि वो ना कुछ जस्ट इन योर रूम. अब वो भी ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम के लिए, दुनिया भर के लिए नहीं. हाँ, जस्ट इन देयर मदर एंड फादर इनके रूम्स के लिए वो रख दीजिए. जैसे सेलेनाइट एक बहुत अच्छा क्रिस्टल है, तो क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज अभी आपका ये
ये चल रहा है पॉडकास्ट, तो अगर आपको ग्रिड करना है तो आपने एक इसको एनर्जाइज किया और आपने चारों कोनों में सेलेनाइट रख दिया तो भी वो आपको प्रोटेक्ट करेगा. नाइस. सो दैट्स द ग्रिडिंग. तो उस सिंपल क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी. बाद में आपको इसको नमक के पानी से धोना है या आप नॉर्मल पानी से धो के आपको उसको रीयूज भी कर सकते हो. नहीं करना है तो उसको गाड़ दो और यू कैन मूव अवे फ्रॉम देयर. सो that is something very nice which you can do, and then negative energies will not come in. That's a very very good tip that you've given us. गीतांजलि जी, अभी हम जो इतनी बातें कर रहे हैं ये सब के बारे में, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस और स्पेशली जो मैरिजेबल ऑडियंस है और जिनको अभी तक अपने पार्टनर्स नहीं मिले हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे व्हाट आर दोज फ्यू थिंग्स दैट दे शुड डू टू अट्रैक्ट लव. हाँ, देखिए, मैं अट्रैक्ट लव तो ठीक है, क्योंकि देखिए आपका एक ऐसी नेचुरल टेंडेंसी होती है 16-18 के बाद कि आप नॉर्मली अट्रैक्ट कर लेते हैं लव. इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर. यू डोंट गो अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर. बट अगर आपकी बाई चांस शादी हो नहीं रही है और आप जब उनकी कुंडलियाँ देखोगे ना तो देखोगे कि वाकई में शादी का योग नहीं है. ओके. बहुत मुश्किल से शादी है. जैसे सपोज आपको पता है कि आपकी बेटी की बहुत मुश्किल से शादी है, पता चल जाता है, तो फिर आपको, ये तो मैं पेरेंट्स के लिए बोल रही हूँ कि बहुत जल्दी आपको उनके लिए लड़के या लड़कियाँ जो भी है ढूंढ लेनी चाहिए. दूसरा, अगर मुझे मेरा बोलते हैं ना गुरु और वीनस एक फीमेल के लिए और मंगल भी, ये तीनों प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू अट्रैक्ट अ गुड फॉर अ फीमेल. अब हम मेल के लिए हम शुक्र ही मोस्टली देखेंगे, बट फॉर अ फीमेल हम गुरु भी देखेंगे क्योंकि हमें अच्छा घर भी चाहिए, सामने वाले के विचार भी चाहिए, तो गुरु शुक्र भी देखेंगे और हम मंगल भी देखेंगे कि सामने जो हमारा मंगल स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें एक अच्छा मेल पार्टनर मिलेगा. तो ये थोड़ी सी चीज़ों के लिए अभी ज़रूरी नहीं है कि आपका मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, तो आप कोई क्रिस्टल्स पहन सकते हैं. अगर आपका मंगल अगर अच्छा नहीं है तो आप कोई रुद्राक्ष पहन सकते हैं. जैसे ना कोई मुझे बोलता है कि मुझे मेरा शुक्र अच्छा करना है, देख लेती हूँ शुक्र तो नीच का बैठा है, इसको कहाँ से हम डायमंड देंगे, तो फिर हम 6 मुखी रुद्राक्ष, मैं बोलती हूँ 6 मुखी रुद्राक्ष पहनो. वीनस है, 13 मुखी रुद्राक्ष पहनो. ऑटोमेटिकली उनका जो प्रभाव है, और रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है ना सब पहन सकते हैं. अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है आप रुद्राक्ष पहन सकते हो, आपकी कुंडली में चंद्र खराब है आप रुद्राक्ष पहन सकते हो. आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क बिकॉज आप रुद्राक्ष पहनते हैं. हाँ. एंड मेरे को मैंने वेरी ऑफन सुना है रुद्राक्ष सबको सूट नहीं करता है. Is that a myth? नहीं, सबको सूट करता है. ये सिर्फ थॉट प्रोसेस है. रुद्राक्ष सबको सूट करता है. जिनको रुद्राक्ष के ब्रेसलेट्स दिए, भाई शादी का ब्रेसलेट दिया, ये चीज़ें डाल दो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसका ब्रेसलेट पहन लो. उनकी शादियों में फ़र्क पड़ा ही है. उनकी खुद की शादी जैसे ख़राब हो रही है तो हम उनको कुछ ना कुछ दे देते हैं. अगर उनकी शादी होनी है तो भी हम रुद्राक्ष दे देते हैं. फिर आप क्रिस्टल कॉच जो आपने पहना है रोज कॉच, वो आप रख सकते हैं. फिर है ना, अगर हम अभी फंगशुई की बहुत सारी टिप्स हैं. फंगशुई की अगर हम करें तो साउथ वेस्ट में, उसमें आप साउथ वेस्ट में ट्विन हार्ट रख दीजिए, बहुत सारे क्रिस्टल्स रख दीजिए, तो इट विल हेल्प यू टू गेट द रोज एनर्जी, द वीनस एनर्जी. आपको वीनस को प्रज्वलित करना है. अब अगर बहुत ज़्यादा उसमें जाएंगे तो मैं बोलूँगी कि अगर किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है तो सौंदर्य लहरी करके एक साउथ इंडियन स्त्रोत है, कुछ 1 घंटे का है, तो वो लड़की को सुनना चाहिए ताकि उसका वीनस प्रबल हो और उसकी शादी हो सके. अगर उसको वीनस सही नहीं है तो आपको छोटी छोटी टिप्स आप करिए. फ्राइडे के दिन पूजा कीजिए ताकि आपका शुक्र जो है वो प्रबल हो, अच्छा हो, क्योंकि शुक्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर अट्रैक्शन, फॉर लव. शादी के लिए गुरु भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जब हम देखते हैं ना लड़की का कैसी शादी होगी तो हम सबसे पहले गुरु देखेंगे कैसा है उसका लड़की का. गुरु के हिसाब से हम देखेंगे कि लड़का अच्छा होगा कि नहीं होगा. शुक्र कैसा है लड़की का, मंगल कैसा है लड़की का. तो अगर आप देखेंगे कि अगर मंगल स्ट्रांग नहीं है तो आप उसको 3 मुखी रुद्राक्ष की माला पहना दीजिए या 7 बीड्स पहना दीजिए, तो वो आपको हेल्प करेगा. कार्नेलियन पहना दीजिए तो वो आपको हेल्प करेगा. तो जब आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी ना तब आप सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे. आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस लड़कियों के लिए दिए. हाँ, थोड़ा लेट्स बी फेयर, लड़कों के लिए भी थोड़ा दीजिए कुछ सॉल्यूशन. लड़कों के लिए उनको सिर्फ अपना शुक्र प्रबल करना है. सिंपल है, सिंपल है, शुक्र प्रबल करना है. हाँ. और उनको अगर चाहिए तो दे कैन वेयर क्रिस्टल कॉर्ड्स, वाइट क्रिस्टल कॉर्ड्स दे कैन वेयर. इफ दे रियली वांट, they can see diamond is very good. For men? Why not?
डायमंड इज गुड फॉर मेन ऑल्सो. अगर आपका शुक्र अच्छा बैठा है, I love this. I'm sure अभी आगे जाके लड़के बोलेंगे you gift me a diamond. एब्सोल्युटली. तो अगर आपका शुक्र अच्छा करना है तो आप डायमंड ही पहनेंगे. अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फायर ओपाल पहनिए. फायर ओपाल जो होता है इट्स हार्डली 4-5,000 रुपीज़ का स्टोन है, वो पहन लीजिए. उससे भी आपका शुक्र बलवान हो जाएगा. आप नहीं, और उससे कुछ नुकसान भी नहीं रहेगा, राइट. आप उसका एक क्रिस्टल बैग बना दीजिए फायर ओपल का. ये अपना जैसे हम कहते हैं एक कौन सा क्रिस्टल है, कार्नेलियन क्रिस्टल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो आप कर सकते हैं. लड़कों को अगर अपना वीनस और भी स्ट्रॉन्ग करना है तो जैसे वो लोग वो भी ये सुंदरी लहरी का पाठ भी सुन सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही सुन सकती है. तो पाठ है, सूर्य है, तो सबके लिए है. शुक्र आपको बलवान करना है. ये भी कर सकते हैं अगर उनको चाहिए तो. कोई दान दे सकते हैं ब्लाइंड ऑर्फनेज में अगर शुक्र खराब है तो, ठीक है. अगर अच्छा, हाँ, अगर शुक्र अच्छा बैठा है तो उसका दान मत करो. तो दैट इज व्हाई आई सेड, क्या एक जेनरिक हम व्यूज जो है ना, फिर हम सिंपल रखते हैं. हम बोलते रोज कॉच पहन लो, जेनरिक 6 मुखी स्पेसिफिक. अब जैसे मैंने कितनी बार देखा है, आपका मेष लग्न है, सप्तम भाव का स्वामी तो ये है, तुला राशि है, उसका स्वामी आपका शुक्र है, तो वो इंसान को डायमंड नहीं पहनना चाहिए. आपने बाई चांस उसको डायमंड पहना दिया तो उसको तकलीफ हो जाएगी. इसलिए एज सच हम नहीं जेनरिक पे नहीं जा सकते. इसलिए क्रिस्टल्स बहुत अच्छा काम करते, इसलिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करते. रुद्राक्ष इज मोर न्यूट्रल फॉर एवरीबॉडी. न्यूट्रल एंड क्रिस्टल्स आर वेरी. तो जैसे आपने यू के कीप अ हीप ऑफ क्रिस्टल्स, लाइक आपने 3-4 किलो का रोज क्वार्ट्ज रख दिया अपने बेडरूम में साउथ वेस्ट में, और कितनी लव एनर्जी आ जाएगी. साउथ ईस्ट में रखो, कितनी लव एनर्जी आ जाएगी. It's a lot to do with subconscious mind. So I think it's what you believe in, what your energy is, and then it starts working for you. गीतांजलि जी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़रूरी है पूछना, बिकॉज मैं ये बहुत देखती हूँ अपने ऑफिस में, सब जगह. यंगस्टर्स है ना आजकल, ChatGPT और AI को अपनी कुंडली बर्थ ऑफ डेट देख के पूछते हैं what is my कुंडली or what are my stars. How authentic you think this information is, number one. And number two, it's an important awareness message that should go out, that what of this can be understood, followed or not followed. I really like this question because fortunately, unfortunately, मैंने 4 दिन पहले अपनी कुंडली कोशिश करी देखने को ChatGPT पे. हाँ. You just were wanting to experiment. हाँ. मुझे तो मेरी कुंडली बाय हार्ट है ना, तो बिकॉज आई कुड डू इट. सी आई नो मेरा चंद्रमा कुंभ राशि का है, ठीक है. मैंने अपना टाइम, डेट ऑफ बर्थ सब डाला और उसमें मैंने बोला ओके, तो आपका जो चंद्रमा है वो कर्क राशि का है. आई हैव इट विद मी, मेरे पास पूरा उसका आंसर है. मैंने कहा दिस इज़ नॉट करेक्ट. उसने बोला लेट मी नो हाउ टू हेल्प यू. उसको कुछ पता नहीं था. तो मैंने बोला ये बकवास है, एंड प्लीज़ डोंट गो. बिकॉज अगर आपको पता करना है आपका कुंडली क्या है तो आप एस्ट्रोसेज पे जाके पता कर लो, कहीं और इस पे पता कर लो, आपको कुंडली पता चल जाएगी. लेकिन डायग्नोसिस कौन करेगा? और वो सब जो है वो रिटर्न है. बट एक ह्यूमन माइंड ही बता सकता है ना. आज उसने मेरा चंद्रमा ही राशि ही बदल दी. उसने मुझे कर्क राशि का बता दिया, एंड दैट वाज अ शॉकर फॉर मी कि कैसे. उसके बाद मुझे ना किसी का somebody gave me a न्यूमरोलॉजी. मैंने बोला अभी मैं टोटल करूँ, इससे अच्छा ChatGPT को पूछते हैं. मैंने कहा उसका नाम है सपोज आयशा खान, मैंने एक नाम बता रही हूँ, वो नाम नहीं था. आयशा खान, इसका टोटल क्या है? तो सॉरी आयशा खान था उसका, ठीक है. तो उसका मैंने बोला टोटल क्या है, तो C की जो वैल्यू थी, और मैंने शेल्डियन न्यूमरोलॉजी भी लिखा, C की वैल्यू 3 होती है, उसने मुझे 2 दी. मैंने बोला ये 48 आ रहा है पर मेरे को तो नहीं लगता है, क्या है? मैंने बराबर नंबर्स देखे, मैंने कहा हाँ गलती है. अब क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं करा. आज के बाद मैं कभी AI को नहीं छूँगी फॉर दिस नॉनसेंस. एंड मुझे लग रहा है कि ये जो AI कर रहे हैं फॉर एस्ट्रोलॉजी, और बोलते हैं कि ये साइकोलॉजिस्ट है, भाई वो सिर्फ आपको जो फीडेड इन्फॉर्मेशन है वही दे रहा है. तो आप विकीपीडिया से भी ले सकते हो कि मेरा गुरु किधर है, मेरा चंद्र किधर है, मेरा ये किधर है. तो मैं सबको यही बोलूँगी कि AI को ब्लाइंडली फॉलो मत करो. Especially in this area of life, and astrology is a very serious business. Yeah, it is a business, and it's a serious business in the sense कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कर रहे हो. अगर मैं कर्क राशि का सोच के अच्छा तो मैं कर्क राशि हूँ, मैं फॉलो करूँगी कर्क राशि, में चीज़ें करूँगी कर्क राशि से, पॉसिबल ही नहीं है ना. तो आपका पूरा उसने कहाँ कुंभ कहाँ कर्क, 6 घर बदल दिए, तो आपकी कुंडली भी बदल जाएगी. So
ये एक नॉर्मल पर्सन को कैसे पता चलेगा? उसको तो लगेगा जो AI बोल रहा है वो सही है. So people are thinking AI is going to replace everything. No, it is not right. Please give some amount of, investment on yourself. Yeah. You are wanting some decision, then you please go to a trained astrologer. Yeah. Don't just go to any AI and all this. और ये मेरा experience है. आपको चाहिए तो screenshot भी ले लीजिएगा. No, we trust you. Thank you for sharing this with us. Yeah. You know, Gitanjali ji, I'm enjoying this so much कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि I should stop talking to you about this. And we could probably go into 2 or 3 episodes on this topic. But I think for now, I'm going to stop myself here, and I will probably do one more episode at some point with you Sure. to further deep dive. But before we go, एक ritual है हमारी, the pink frame moment, जहाँ पर हम आपसे कुछ questions पूछेंगे, and you can give us answers in one word, one sentence. These are just like a, like a Rapid fire. rapid fire. So one zodiac sign that should not rush into marriage this year. Aries. This year. And yes, and Leo. If they can avoid till the end of the year, it will be good. Awesome. One sign that may need to focus on listening from their partners Gemini. this year. Yeah. This zodiac sign is likely to face a crossroads between love and career. Virgo. Zodiac sign that will value rituals and traditions the most. This could be not just this year, but Yeah, so I'm not particularly going for the 2026 year for this. Like those who value rituals, Taurians, they value rituals a lot. If you see Cancerians, they value rituals a lot. Sagittarians, they value rituals a lot. Yeah. Sagittarians को देखो, मीन राशि वालों को देखो, they will value rituals a lot. which zodiac sign will have a transformational love lesson this year? I believe Scorpio. Scorpio. Actually, this year everybody is talking a lot about Scorpio, right? I don't know. Final one. 3 words to a couple who are already married. 2026 is going to be, अगर मैं न्यूमरोलॉजी वाइज बोलूँ तो it's going to be a good year. Otherwise it can be मैं ना इसमें 2-3 चीज़ें बताऊंगी. Yeah. 3 words तो मैं नहीं करूँगी. मैं बोलूँगी कि देखिए नॉर्मली हमने देखा है कि साउथ वेस्ट को बोलते हैं बेडरूम बहुत अच्छा है, लेकिन दिस ईयर द इलनेस स्टार इज इन द साउथ वेस्ट. Okay. तो दे नीड टू, एंड ये लोग करले फूड डॉग्स करके हैं आते हैं चाइनीज़ में फंक्शुई में, वो अपने बेडरूम में लगाएं ताकि प्रॉब्लम्स, फाइट्स, litigations इस सब को वो अवॉइड कर सके. Yeah. That's the first thing for couples. Then they need to have patience because this is the year of the fire house also, and they need to have patience कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, and not to create unnecessary conflicts. That is, so I would advise generally also. And if they can, in their bedroom, keep something of the color pink, a rose quartz, a pink color, some candles. I know it is not easy because we don't have so much of space, but if that is allowed, then keep something of pink. Normally that will be very great. And TV अगर अपने couples अपने room से बाहर रख सके, that will be the best for them. So TV shouldn't be... TV shouldn't be a part of your bedroom because as it is gives a lot of distraction. So, a person doesn't talk much and the person just watches the TV and goes to sleep. So TV, mobiles को bedroom से बाहर रख दो, आपके stress levels भी down हो जाएंगे and आपकी life भी बहुत अच्छी romantic. Music सुनना है तो music सुनिए, that's something, or there has to be a me time together. Lovely. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for your inviting time, me. and it was great chatting with you. Thank you so much. Same here. Today I'm going to let Gitanjali ji help the podcast a little. Please go ahead. Yeah. So I'm sure this podcast is a different podcast and you must have liked the podcast, and little jo information we gave you, please do take care of it. If there is somebody around you जिसकी शादी होने वाली है, आप लोग ध्यान रखिए चीज़ों का. And the main thing is that she's so much engrossed in astrology, then you can definitely share it to everyone. So do like, share and comment and make this podcast reach as many people as possible ताकि लोगों को भी पता चले कि क्या क्या चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है, देखनी पड़ती है जब शादी होती है, या क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी होती है एक शादी में. And this will definitely help. So please do like, share and comment, and do call us up in case you require any kind of assistance. We are always there to help you.
Thank you. Thank you so much.